নমস্কাৰ মেজ মেলৰ মজিয়ালে আপোনাক জনাইছোঁ আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয় দৰ্শক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সন্ধিক্ষণত আজি আমি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱ নমস্কাৰ আপুনি আমাক ইমানখিনি সময় দিলে আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ মাজত মই বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যোৱা 2-3 বছৰত আপোনাক সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কিন্তু আপুনি সাক্ষাৎকাৰ দিব পৰা নাছিল প্ৰিয় দৰ্শক মই কওঁ যে চাৰিওফালে চলি আছে উচ্ছেদ আহি আছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন আহি আছে 2026ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু তেনেকুৱা সময়ত বৰাক উপত্যকাৰ এটা অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ তৃতীয় প্ৰজন্মৰ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আৰু যি বৰ্তমান তৃণমূল কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সুস্মিতা মই আপোনাক অসমীয়াতে সুধিম আৰু আপুনি হিন্দীত উত্তৰ দিলে মই ভাল পাম नमस्कार दादा हिंदी में जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि गृह मंत्री आ रहे अमित शाह जी उनको देखना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं অলপ চলপ অসমীয়া বুজি পাওঁ ক'ব নাপাৰোঁ that is the problem but I respect all languages and I will speak in Hindi because I want Amit Shah ji to understand what I am saying. সুস্মিতা আপুনি তৃতীয় প্ৰজন্মৰ কংগ্ৰেছ আপোনাৰ ককা সতীন্দ্ৰ মোহন দেৱ আছিল এজন অতি শীৰ্ষস্থানীয় কংগ্ৰেছৰ নেতা আপোনাৰ দেউতা যাক আমি মৰমতে ৰাণাদা বুলি মাতিছিলোঁ সন্তোষ মোহন দেৱ আছিল কংগ্ৰেছৰ একেবাৰে সংসদৰ চিফ হুইপ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি আছিল আৰু আপুনি জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় সভানেত্ৰী আছিল আপোনাক ধৰি আপোনাৰ পৰিয়ালটো তৃতীয় প্ৰজন্মৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহ তৎসত্ত্বেও আপুনি ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্ব মানি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰি আপুনি কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ দিন ধৰি মই আপোনাক এই প্ৰশ্নটো সুধিবলৈ ৰৈ আছিলোঁ আৰু আজি সুযোগ পাইছোঁ কিয় কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে पहली बात तो यू मस्ट अंडरस्टैंड हिंदी में बोलिए आपने मेरे दादाजी का नाम लिया मेरे पिताजी का नाम लिया थैंक यू वेरी मच मेरे माताजी भी एमएलए थे असेंबली में हाँ सिलचर एमएलए शी वाज एंड चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड देखिए कांग्रेस मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और तब से हमारे फैमिली में हम कांग्रेस ही कर रहे हैं पर मुझे लगा इन 2021 असेंबली इलेक्शन कांग्रेस इन आसाम मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगी मैं सोनिया जी राहुल जी का आपने नाम लिया मैं उनकी बात नहीं करूंगी क्योंकि वो लोग इतना माइक्रो मैनेज किसी भी स्टेट को नहीं करते राजगुरु जी बट आई फेल्ट दैट कांग्रेस वॉज टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड 21 के इलेक्शन में सब लोग कांग्रेस के जो नेता थे जो सीनियर लीडर्स थे वो लोग सब चीफ मिनिस्टर असम का बनना चाहते थे और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पावर के लिए क्षमता जो ने द काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया वो मुझे पसंद नहीं आया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दादा आई विल बी ऑनेस्ट वो बराक वैली को एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया सीट शेयरिंग में आप देखिए सुनाई का जो सीट है उसमें मेरे पिताजी संतोष मोहन देव हारे हैं जीते हैं बहुत इलेक्शन मैं भी हारी हूँ मैं भी जीती हूँ पर सोनाई सीट में हमको हमेशा लीड मिलता था कभी 30,000 35 40,000 25,000 बट कांग्रेस असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पावर में आने के लिए सोनाई सीट को बदरुद्दीन अजमल साहब को दे दिया तो आप लोअर असम में कोई विनिंग सीट दीजिए ना वाई बराक वैली तो अगर आप मेरे लोकसभा सीट को बर्बाद करके मेरे वोटर्स को त्याग करके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बराक वैली में जाके बोलूँगी लोग आप लोग कांग्रेस को वोट दीजिए दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी दादा एंड आई वॉज टोटली अगेंस्ट द कोएलिशन विद AUIDF मैंने साफ राहुल गांधी जी को मैंने साफ इंचार्ज को
स्टेट प्रेसिडेंट को बोल दिया था कि हारना बेहतर है. It is better to lose than make a ideological compromise. With जो AIUDF. Yes, it was wrong. हमने गलत मैसेज दिया. प्रद्योत बोरदोलोई, who is now an honorable MP, वो सिलचर में आए. तो सिलचर का प्रेस ने उनको पूछा कि आप AUIDF के साथ क्यों गए? वो तो एक रिलीजन का पार्टी है. Is it not communal politics? So प्रद्योत बोरदोलोई जी का जवाब था कि नहीं, अगर कोई अपने जाति के लिए बोलता है तो वो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होता. वही कांग्रेस आफ्टर 2021 प्रेस मीट করে বলে দিল that we are not with AUIDF, it is a communal party. So you আপোনাৰ can't. বেসিক কথাটো আছিল যে আপুনি বদৰুদ্দিন আজমলক লগত আপোচ কৰাটো, কম্প্ৰমাইজ কৰাটো আপুনি বিচৰা নাছিল. Correct. ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আপোনাৰ যিটো পাৰ্লামেণ্ট সিট শিলচৰ, এই শিলচৰটো ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়া হ'ল আৰু আপোনাৰ কাৰণে এতিয়া বৰাক উপত্যকাত কোনো সংসদীয় সিট নাই. এছেম্বলি সিট ওলাব কিন্তু পাৰ্লামেণ্ট সিট আপোনাৰ কাৰণে নাই. আৰু আপুনি ততাতৈয়াকৈ TMCত যোগদান কৰাৰ পিছত পশ্চিমবংগৰ পৰা আপুনি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছে. মই নকওঁ যে বৰাক উপত্যকাৰ পৰা ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো বাহিৰৰ পৰা MP হোৱা নাই. আপোনাৰ দেউতাও ত্ৰিপুৰাৰ পৰা হৈছিল. এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ শিলচৰ আসনখন ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়া হ'ল, আপোনাৰ কাৰণে সদ্যহতে প্ৰথম দৃষ্টিত এটা ফাৰ্ষ্ট লাঞ্চ কোনো আসন আপোনাৰ কাৰণে নাই. গতিকে আপুনি কি পশ্চিমবংগলৈ আপোনাৰ ৰাজনীতি পৰিৱৰ্তিত কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি? Never. Assam is my karma bhumi. And see, it is like saying कि आसाम से जाकर ममता दीदी ने मुझे राज्यसभा दिया टू वर्क इन नॉर्थ ईस्ट. तो मैंने त्रिपुरा में काम किया. आई एम वर्किंग इन आसाम टुडे. बट दादा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोला. आपने कहा कि मेरा सीट बराक वैली में नहीं है क्योंकि सिलचर MP लोकसभा सीट রিজার্ভ हो गया, SC হয়ে গেছে. আমি আসামের মানুষকে জিজ্ঞেস করতে চাই कि जनरल कास्ट हिंदू बंगाली का पूरा असम में कोई लोकसभा सीट नहीं है. जी करेक्ट. शेड्यूल कास्ट का है. क्यों है? बिकॉज सिलचर इज शेड्यूल कास्ट. नो प्रॉब्लम. आई एक्सेप्ट दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है. हमको वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज टुडे ए जनरल कास्ट हिंदू बंगाली का असम में एक भी लोकसभा सीट नहीं है. करीमगंज करीमगंज इज अ माइनॉरिटी मेजॉरिटी सीट. फॉर मोर देन 50 इयर्स ये रिजर्व था. तो माइनॉरिटी लोगों का एक आकांक्षा है कि वो वहां से लड़ेंगे. दादा, नाउ द ओनली पार्टी हु कैन गिव ए हिंदू बंगाली जनरल कास्ट फ्रॉम करीमगंज इज द भारतीय जनता पार्टी. वो मुसलमान को तो देंगे नहीं. ठीक है. उन्होंने भी वहां गार्डन MP दे दिया, कृपानाथ माला. तो अगर I don't know how many Hindu Bengalis are Assam. Some people say 70 lakhs, some people say 80 lakhs. क्योंकि सेंसस तो हुआ नहीं. कोविड के बाद there is no census for the first time in the history. जब बांग्लादेश वॉर हुआ था उसके बाद भी सेंसस हुआ था. पर कोविड के बाद मोदी जी ने सेंसस नहीं किया. पर one of second most spoken language and I feel second largest सबसे बड़ा कम्युनिटी जो हिंदू बंगाली है आज की डेट में जनरल कास्ट के लिए आसाम में एक भी सीट नहीं है. ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है, ये आसाम का दुर्भाग्य है कि ऐसा डिलिमिटेशन हुआ. আসামের হিন্দু বাঙালির দুর্ভাগ্য. বর্ণ হিন্দু বাঙালির আজকে আসামে একটাও লোকসভা সিট নেই. আমি বলবো why only তৃণমূল Congress and BJP should give Hindu Bengalis outside Barak Valley a लोकसभा सीट. हम तो देंगे, नो प्रॉब्लम. पर अगर पार्लियामेंट में किसी को बिठाना है लोकसभा में तो BJP and Congress, which are the two biggest parties in Assam, should give a seat outside Barak Valley to Hindu Bengalis in Lok Sabha. কৰিমগঞ্জৰ নামটো আমি জন্মৰ পৰা সৰুৰে পৰা কৰিমগঞ্জ বুলিয়ে জানিছিলোঁ. শিলচৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি তিনিটাই আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ জেগা. হঠাতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অভাৰনাইট নামটো সলনি কৰি দিয়া হ'ল.
আৰু কৰি দিয়া হ'ল শ্ৰীভূমি। এই শ্ৰীভূমিৰ নামটো আমি কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ। আপুনি এই ষ্টুডিঅ'লৈ অহাৰ দুদিন পূৰ্বে কৰিমগঞ্জত এখন বিশাল সভা হৈছে। তাত হিন্দু মুছলমান সকলোৱে মিলি নাম সলনিৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে। কৈছে যে এনেকৈ কোনো ধৰণৰ মানুহৰ মতামত নোলোৱাকৈ, ষ্টেক হোল্ডাৰক বিশ্বাসত নোলোৱাকৈ হঠাতে একপক্ষীয়ভাৱে নামটো সলনি কৰি দিয়া হ'ল। বহুত মানুহে ভাল পোৱা নাই। আপুনি কি কয়? सी दादा, मैं ये बोलूँगी, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर शर्मा डज नॉट बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस। किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं, कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं। उन्होंने श्रीभूम का नाम क्यों दिया? वो सोचते हैं कि नाम परिवर्तन करने से रविंद्रनाथ टैगोर का हिस्ट्री को लाके वो बंगालीज को प्लीज करना चाह रहे हैं। देयर इज नो सेकेंड रीजन। करीमगंज उनको लगता है इज अ मुस्लिम नेम, सो वी शुड रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर एंड गिव अ नेम। मैं सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी को बोलना चाहती हूँ, ये अगर आप हिंदू बंगालीज को प्लीज करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं असम में, तो आप फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जितना हिंदू बंगाली के अगेंस्ट केस है उसको ड्रॉप करिए। नाम परिवर्तन करने से क्या होता है? कहा कौन लाया? तृणमूल लाया? तृणमूल तो नहीं लाया, कांग्रेस नहीं लाया, सीपीएम नहीं लाया, सीएए कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी लाया, अमित शाह जी लाया, हेमंत बिश्व शर्मा जी लाया। तो अगर आप काम में विश्वास करते हैं तो 10 दिन पहले सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने क्यों कहा कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से हिंदू बंगाली के अगेंस्ट केस ड्रॉप नहीं होगा? तो नाम बदलने से क्या होता है? और एक चीफ मिनिस्टर को देखना चाहिए लोकल सेंटिमेंट क्या है दादा। ऑन आई थिंक 31 ऑफ अगस्त वो जा रहे, उन्हें शिलचरे যাচ্ছেন नेताजीर स्टैचूर ओपनिंग করতে। ही इज गोइंग टू सिलचर। वी वेलकम हिम, ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही कैन गो एनीवेयर। बट द क्वेश्चन इज, हेमंत बिश्व शर्मा जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि अगर आप बंगाली बोलेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा बांग्लादेशी ढूंढने में। क्यों? Because he thinks बांग्ला भाषा इज इक्वल टू बांग्लादेशी। बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ 71 में। उससे पहले भी बंगाली लोग आसाम में थे और उसके बाद भी बंगाली लोग यहाँ पे हैं। आज जो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट है, जो कछार, अनडिवाइडेड कछार दादा, व्हेन हाइलाकांदी एंड ऑल वर नॉट देयर, वो बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ था। 1874 और 76 उसको आसाम में लाया गया। तो बंगाली कितना सेंचुरी से है आसाम में? आप क्या बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? আপনি বলছেন বাংলা ভাষা বলা মানে বাংলাদেশি। आप तो जेन्युइन सिटीजन्स जो बंगाली जिनका मातृभाषा है, যাদের मातृभाषा बांग्ला, আপনি ওদেরকে অপমান করছেন। वो क्यों कह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं दादा? लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज नो पार्टी, आसाम में ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो बंगाली के लिए फ्रंट फुट पे बैटिंग करता है। नाइदर कांग्रेस नॉर बीजेपी नॉर सीपीएम, पता नहीं क्यों। वेयर इज बंगाली पीपल लव असम। आई लव असम। Bengali speaking people love Assam. We are part of Assam. We are against Bangladeshi infiltration. Thank you, Susmita. এইখিনিতে লৈছো ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি। চাই থাকিব মেজমেল। পুনৰ ঘূৰি আহিছো মেজমেলৰ মজিয়ালে, আৰু মেজমেলত আজি উপস্থিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ, শীৰ্ষস্থানীয় নেতা, মুখপাত্ৰ সুস্মিতা দেৱ। সুস্মিতা, বিৰতিৰ আগতে আমি পাতিছিলোঁ কৰিমগঞ্জ নাম সলনিৰ কথা। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছত আছিল সুদীৰ্ঘ 25-26 বছৰ। আপুনিও কংগ্ৰেছত আছিল আৰু আপুনি তৃতীয় প্ৰজন্মৰ কংগ্ৰেছ। আপোনাৰ বন্ধু আছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আপুনি ইয়াত বিধায়কো আছিল কিছুদিন, একেলগে আছিলে। এতিয়া আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা কি ধৰণে পৰ্যবেক্ষণ কৰে? सी दादा, लाइफ में 2 तरह का पॉलिटिशियन होता है। आप चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं,
आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पर पंडित नेहरू की जब बात आती है, वी कॉल हिम अ स्टेट्समैन. Statesman. You see, so my disappointment with the Chief Minister of Assam is one, his communal politics. उन्होंने आसाम को डिस्टर्ब कर दिया दादा. ये जो इविक्शन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं डेमोग्राफी चेंज हो गया, डेमोग्राफी चेंज कर, वो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वो अगर 1200 फैमिली को इविक्ट कर रहे हैं, ये लोग आसाम में ही कहीं और जाके ठहर रहे हैं. एंड नाउ इविक्शन की वजह से दादा, ही इज डिस्टर्बिंग मेघालय, ही इज डिस्टर्बिंग मिजोरम, क्योंकि कुछ लोग बॉर्डर से वो स्टेट में जाएंगे जिनका इविक्शन हो रहा है. सो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा इज नॉट हेल्पिंग आसाम. उनका अपर आसाम में वोट कम हो रहा है. इसकी वजह से जो 10 साल का डबल इंजन सरकार था, वो 6 महीने में इविक्शन करके अपर आसाम के लोगों का वोट लेना चाह रहे हैं. मैं आपको कह रही हूं कि आफ्टर इलेक्शन हेमंत बिश्व शर्मा विल डू नथिंग अबाउट इन्फिल्ट्रेशन. आई वॉन्ट टू स्पीक टू द असमीज कम्युनिटी कि हेमंत बिश्व शर्मा जी जो इविक्शन कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए कर रहे हैं. इलेक्शन के बाद वो कुछ नहीं करेंगे. माई सेकेंड डिसअपॉइंटमेंट विथ चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. आज असम के स्टेट में आप लखीमपुर से लेकर अगर हाइलाकांदी तक जाएंगे, ठीक है, या आप डिमा हसाऊ से लेकर अगर आप मानकाछार तक जाएंगे, सब बोलते हैं करप्शन इज रैम्पेंट इन असम. वो सिर्फ करप्शन को सेंट्रलाइज कर दिया. आज कहीं भी जाओ, मैं नहीं बोल रही हूं, मैं बोलूंगी तो ये बोलेंगे आप प्रूव करिए. मैं कहीं भी जाती हूं, लोग बोलते हैं ये हेमंत बिश्व शर्मा का फैमिली ये लैंड ले लिया, ये लैंड भी हेमंत बिश्व शर्मा का फैमिली, ये हिल भी हेमंत बिश्व शर्मा का फैमिली ले लिया. दिस मे बी सब ट्रू. कुछ सही नहीं है. সকলো সঁচা मैं নহয়. यही बोल रही हूँ दादा. মানুহে কয় मैं यही बोल रही हूँ, इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स. मैं आपके दर्शकों को बोलती हूँ, मेरे पास एविडेंस नहीं है, पर पब्लिक के मुंह पर, जुबान पर जब चीफ मिनिस्टर और उनका फैमिली को लेके लैंड का बात आता है, व्हाट इज द इमेज ऑफ दैट चीफ मिनिस्टर? आप लोग ममता दीदी के करप्शन के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं. आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर है, आज सिंडिकेट चल रहा है कि नहीं? आज सिंडिकेट चल रहा है. इन्वेस्टिगेशन, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, आप देखेंगे कि इट इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट. आज कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा नहीं पेमेंट हो रहा असम गवर्नमेंट में. जल जीवन मिशन इज अपोजिंग. किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो रिसेंटली कर रहे हैं, मुझे तो बहुत दुख होता है, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज माई स्टेट, ही इज ऑल्सो माई चीफ मिनिस्टर. वो बीजेपी के हो सकते हैं, वो सुबह एक बात करते हैं, दोपहर को एक बात करते हैं, रात को एक बात करते हैं. दादा, यू आर नॉट जस्ट अ जर्नलिस्ट, यू आर अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर. वो बोले जहां 71 में इविक्शन, जहां इविक्शन हुआ 1971 से पहले जो है उनको हम रिलोकेट करेंगे. बोले कि नहीं? बोले कि नहीं वो दादा? नेक्स्ट 3 दिन बाद बोलते हैं कि जिन लोगों का एविक्शन हुआ उनको मैं वोटर लिस्ट से निकाल दूंगा. Correct? From that place. Yeah. From that place from where he has been evicted. Yes. So what I'm saying is that who are you? Who are you to say कि मेरा वोट कहाँ होगा? That Election Commission of India will decide. Who is the Chief Minister? Election Commission of India एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है which a politician and chief minister control नहीं कर सकते. Who is हेमंत बिश्व शर्मा to say Election Commission of India किसको कहाँ वोट का अधिकार देगा? Is this constitutional? Delimitation जब हुआ दादा, हेमंत बिश्व शर्मा ने बोल दिया मैंने 90+ सीट रिजर्व कर दिया. Is he Election Commission of India? आप बोलिए ना, यू आर अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर. दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ पपेट ऑफ नरेंद्र मोदी जी एंड द पपेट ऑफ हेमंत बिश्व शर्मा बिफोर डिलिमिटेशन इन आसाम. ये कैसे मुख्यमंत्री हैं? इज ही अबव द कॉन्स्टिट्यूशन? Susmita,
NRCত 19 লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰিছে আৰু 19 লাখৰ ভিতৰত যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু বেংগলী মানুহৰ নাম আছে এতিয়া CA খন আনি তেওঁলোকে এটো ক'ব খুজিছে যে আমি হিন্দু বেংগলী যিসকলে নিজৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে তেওঁলোকক আমি CA ৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব দিম মোৰ প্ৰশ্ন দুটা এটা হল CA ৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব দিয়াৰ পূৰ্বে NRC যিসকলে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি কাগজপত্ৰ দাখিল কৰিছিল তেওঁলোকক ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ দিয়া হোৱা নাই কিয় তেওঁলোককতো এতিয়াও কোৱা হোৱা নাই যে তোমাৰ নামটো নাই এই কাৰণে নাই তুমি ন্যায়াধিকৰণলৈ আহা আৰু তুমি প্ৰমাণ দিয়া সেই সুযোগটো দিয়া নাই ঠিক এই প্ৰসংগত আপুনি কি কয় মই পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিম सी NRC पूरे देश में NRC का अपोज हुआ आसाम में नहीं हुआ दादा why because of our history because of our history because of Assam Andolan we need it we want it yes I will also say today Mamata Di does not want NRC in Bengal correct but I know the history of Assam and as a Bengali speaking person of Assam मैं भी चाहती हूं कि NRC हो और ये चैप्टर बंद हो जाए कि कौन नागरिक है कौन नहीं है फुल एंड फाइनल इस पे डिसीजन होना मैं भी चाहती हूं वी सपोर्टेड NRC में 1500 करोड़ खर्चा हुआ कोई समाधान नहीं हुआ यू योरसेल्फ से दादा उसमें हिंदू बंगाली बाहर है गोरखा लोग बाहर है राजवंशी बाहर है आउटसाइड তেওঁলোকৰ সংখ্যা কম कम सबसे बेशी हिंदू बेंगली एंड मुस्लिम एंड सेकंड इज बंगाली मुस्लिम मुस्लिम ठीक है वो डेटा भी पब्लिक नहीं हुआ वो CM बोलते हैं वी हैव नॉट सीन द डेटा एनीवे नाउ द क्वेश्चन इज CAA किसके लिए है CAA हिंदू बंगाली इलीगल जो माइग्रेशन किया उनके लिए है जी पर जो 19 लाख में हिंदू बंगाली है ওরা কাগজ দেখিয়েছে रिजेक्ट हुआ हाजेला ने रिजेक्ट किया नो अपील प्रोसेस इज देयर नो वन कैन अपील आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमित शाह जी हिंदू बंगाली लोगों को बोल एक ही ऑप्शन दिया है आप जाओ CAA का फॉर्म भरो और उसमें लिख के दो कि आप बांग्लादेश से आए हैं और बांग्लादेश की ये जगह से आए हैं बीजेपी আজকের দিনে হিন্দু বাঙালিদের বাধ্য করছে লিখতে যে ওরা ফরেনার दिस इज रॉन्ग अगर कोई इलीगल इनफिल्ट्रेटर है वो भरे नो प्रॉब्लम हिंदू बांगाली लोग भरे we will be coming to this point Yeah. আমি এইখিনিতে লৈছো ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি আমি পুনৰ আলোচনা কৰিম CAA আৰু হিন্দু বেংগলীৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আৰু মেজমেলৰ মজিয়াত আজি উপস্থিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱ সুস্মিতা আমি কথা পাতি আছিলোঁ CAA ৰ পৰা বাদ পৰা মানে CAA নহয় NRCৰ পৰা বাদ পৰা আৰু সাধাৰণ বেংগলী মানুহ যাক আপুনি কৈছে যে বিজেপিয়ে বাধ্য কৰিছে ফৰ্মত লিখিবলৈ যে মই বাংলাদেশৰ পৰা আহিছোঁ আৰু এইখিনি সময়ত মই অমুক জেগাৰ পৰা আহিছোঁ এই ঘটনাটো হৈছে বেংগলত ট্ৰেইনিং কেম্প কৰিছে মই এটো খবৰ পাইছো মই প্ৰশ্নটোলৈ আহিম কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে অসমৰ হিন্দু বেংগলী যিসকলৰ নাম বাদ পৰিছে হিন্দু আৰু মুছলমান দুয়োকে তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে এবাৰো সুযোগ দিয়া হোৱা নাই যে আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰক আপোনালোকৰ কিবা কাগজপত্ৰ থাকি গৈছে মই এটা উদাহৰণ দিওঁ মোৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা মোক ইংৰাজী পঢ়াইছিল তেওঁ বাংলাভাষী মানুহ তেওঁ 1964ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি অসমৰ এখন কলেজৰ অধ্যাপিকা হ'ল তাৰ পিছত কি হ'ল তেওঁ যেতিয়া আপলোড কৰিলে NRCত কোনোবাই তেওঁৰ সেই কাফেত য'ত আপলোড কৰিছিলে কোনোবাই হেতু ভুল কৰি পেলাই 2000 চনৰ পাছপোৰ্টখন আপলোড কৰিলে সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড নকৰিলে দ্যাট ওয়াজ এন মিস্টেক দ্যাট ওয়াজ এন এৰৰ আজি সেই মানুহগৰাকীয়ে বিচাৰি ফুৰিছে যে সেই এৰৰটো কেনেকৈ ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰি কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব পাৰি নো ৱে
65ৰ চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁ NRC বা ন্যায়াধিকৰণত দিলেই হৈ যায় আজি সেই মানুহবোৰে সুযোগ পোৱা নাই যে এবাৰো যে আমি ভাৰতীয় আৰু আমাৰ হাতৰ কাগজ আছে ভুলতে কিছুমান কাগজ গুচি গৈছে বা আমি নজনাৰ কাৰণে গৈছে No rectification process. নো ৰেক্টিফিকেশ্যন এতিয়া হোৱাৰ সুযোগ নাই সুস্মিতা এই প্ৰসংগত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ See, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा एनआरसी का जो लिस्ट निकला 2019 फाइनल ड्राफ्ट इफ यू लाइक उनको जब अच्छा लगता है ही रिलाइज ऑन द एनआरसी उनको जब लगता है कि ये एनआरसी में नहीं मानता देन से हमें एनआरसी मानी ना अमित शाह जी आ रहे हैं आसाम ही उनको बोलना चाहिए आसाम स्टेट को कि वो एनआरसी का 2019 का लिस्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं अगर बोलेंगे मानते हैं तो আপনি যে অধ্যাপকের एग्जाम्पलটা দিচ্ছেন देन शी कैन अप्लाई शी कैन अपील अगर आप नहीं मानते हैं ओके तो उसको कैंसिल कर दीजिए सो योर टीचर इज सेफ सो बीजेपी एनआरसी को लेकर एक गेम खेल रही है एक आसाम में इसको लेके पॉलिटिक्स जब तक चलेगा सब लोग पॉलिटिक्स करेंगे वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगे टू NRC has totally failed in Assam, दादा. अमित शाह जी क्या बोला था आफ्टर 5 years of सोनोवाल पहले बोला जाति माटी बेटी बोला फिर बोला शौराय घाट का लड़ाई बोला कि नहीं दादा उसके बाद बोला कि हम सब घुसपैठिए निकाल देंगे जब 40-40 लाख पीपल वर देयर जाति माटी बेटी 10 বছর बीजेपी गवर्नमेंट हैज डन नथिंग Now 6 months before election they are doing eviction. फिर बोला कि हम 40 लाख घुसपैठिए अमित शाह जी हम निकाल देंगे कितना घुसपैठिया निकाला हेमंत बिश्व शर्मा बॉर्डर से पुशबैक कर रहे कितना 100 200 300 so they have failed on the agenda of infiltration. फॉरेनर्स इशू जो असम का सबसे बड़ा बर्निंग इशू था बीजेपी उस पे फेल कर गया दैट्स वाई द इविक्शन दैट्स वाई हेमंत बिश्व शर्मा सेज एनआरसी में नाम नहीं है तो आपको ये नहीं मिलेगा आधार कार्ड नहीं मिलेगा फिर कहता है एनआरसी में नाम होने से क्या है हम तो इविक्शन करेंगे अरे अमित शाह जी आई एम आस्किंग यू डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा मैं आपसे पूछ रही हूँ सिर्फ एक मिनट का इंटरव्यू आपके साथ करके बता दे इज एनआरसी वैलिड yes or no till the government doesn't answer this dada we cannot solve the problem of innocent genuine citizens like your teacher no one can answer this question সুস্মিতা পশ্চিম বংগত মটুৱা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ কিমান আছে এনি আইডিয়া I can't say the exact count dada on record but substantial amount is there substantial number some people said that it may be 2 crore or so maybe I don't know I have not seen the census record মটুৱা সম্প্ৰদায়ক এইটো আশ্বাস দিয়া হৈছিল যে CAA আহিলে তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব নিশ্চিত হ'ব আজি কি অৱস্থা CAA আহি গ'ল CAA লাগু হৈ গ'ল CAA ৰুলছ ফ্ৰেম হৈ গ'ল এতিয়া মটুৱা সম্প্ৰদায়ৰ অৱস্থাটো কি zero result how come see আসামে में কতজন সিটিজেনশিপ পেয়েছে 2 or 3 people True, 2 or 3 so West Bengal most of the cases are hanging in these tribunals you see there is a Motua minister बंगाल का एक शांतनु ठाकुर बोल के एक मंत्री है जो वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर है ही इज द फेस ऑफ मोतुआ कम्युनिटी वो घर घर जाके हाथ जोड़ रहे कि फॉर्म भरिए कोई नहीं भर रहा है बंगाल में बिकॉज हिंदू बंगाली पीपल को समझ आ गया है CAA इज अ ट्रैप धोखा है उनको फॉरेनर बनाने का CAA is a flop show of অমিত শাহ আর আমি আসামের হিন্দু বাঙালিদের বলতে চাইছি যতদিন আপনারা বিজেপিকে ভোট দিবেন আপনারা অলওয়েজ সাসপেক্টেড বাংলাদেশি থাকবেন অলওয়েজ बीजेपी प्लेज ऑन द हिंदू सेंटिमेंट वो हिंदू सेंटिमेंट को अपनी तरफ करने के लिए काल आए थे टुडे आई लॉस्ट माय इलेक्शन दादा
मैं तो इलेक्शन हार गई लोकसभा में सिलचर में। क्यों हार गई? क्योंकि बीजेपी ने नाच नाच के लड्डू बांट के बोला हिंदू सब बच गए। अब 3 लोगों को सिटीजनशिप दिया और हिंदू सब बच गए। हाँ, और हिंदू सब अब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में है दादा, या डी वोटर है या फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है। कोई नहीं कोई हैंग हो रहा है। हाँ, एंड दिस इज अ प्रेस्टिजियस প্ল্যাটফর্ম। আমি হিন্দু বাঙালিদের বলতে চাই যে নিজের ক্ষমতাটা বুঝেন। और चीफ मिनिस्टर को बोलना चाहती हूँ, जिस दिन हिंदू बंगाली समझ जाएगा आपका धोखा, बीजेपी कैनॉट कम टू पावर इन असम। आई एम टेलिंग यू टुडे द बेस, टुडे आज की डेट में जो बेस है बीजेपी का, हेमंत बिश्व शर्मा का खुद का सीट बंगाली लोगों के लिए जीत के आता है। जिस दिन बंगाली बीजेपी से हट जाएगा वो जीरो हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू दादा, दैट्स वाई, दिस इज वाई बीजेपी कोई साफ जवाब नहीं दे रहा, ना सीएए पे, ना एनआरसी पे, ना फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पे, नथिंग। दे आर ओनली अटैकिंग द बंगाली मुस्लिम, ताकि अपर असम में लोग खुश हो जाए। और अपर असम के लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ दादा, प्लीज डोंट माइंड। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अखिल गोगोई आंदोलन किया, लुरिन ज्योति आंदोलन किया, क्या काना मानू हुआ ना इतना आंदोलन जी हो गया। अपर असम में बीजेपी कैसे जीत गया सीएए के बाद? आफ्टर सच अ बिग एजिटेशन इन असम, मैं आपको याद है मैं शिवसागर में गई थी और मेरे को गमछा दिया था और वो कंट्रोवर्सी हो गया था। आप यू रिमेम्बर दैट? इन दैट मीटिंग आई थॉट बाप रे, कांग्रेस इज गोइंग टू स्वीप अपर असम। सीएए आने के बावजूद अपर असम में बीजेपी क्यों जीता, इसका एनालिसिस करना चाहिए। क्यों आई एम जीता? शॉक्ड। क्यों जीता आपका एनालिसिस में? इट इज वेरी सिंपल। 2 कारण है। कांग्रेस शुड लिसन केयरफुली। इसका 2 कारण है। 1, आपने कहा हम सीएए नहीं मानते। कांग्रेस ने भी कहा, आई थिंक अंजुन दत्तो वाज द प्रेसिडेंट। यस, एट दैट टाइम अंजुन दत्तो। पर आपने अलायंस किसके साथ किया? बदरुद्दीन अजमल। नहीं, रिपुन दत्तो, रिपुन दा। पर आपने अलायंस किसके साथ किया चीफ मिनिस्टर बनने के लिए? बदरुद्दीन के साथ। हाँ, तो अपर असम आपको क्यों बिलीव करेगा? यू आर एंटी सीएए। एग्जैक्टली। ओके, Exactly. एम आई राइट? नंबर 2 रीजन, आज कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जो एंटी का वोट था वो अपर असम में डिवाइड हुआ अखिल और लुरिन के लिए। जी, ये 2 फैक्टर कांग्रेस को सोचना चाहिए दिस टाइम इन अपर असम। इफ अगर बीजेपी को हराना है, आप ये 2 चीज एनालाइज कीजिए। एंड आई विल टेल असम कांग्रेस, मुझे बड़ा दुख हुआ, इतना एविक्शन हुआ, हाँ, उच्छेद हुआ, घर तोड़े गए, मुस्लिम इतना विक्टिमाइज हो रहा है। 100% तो सब बांग्लादेशी नहीं है दादा। जो बांग्लादेशी है उनको डिपोर्ट कीजिए ना, बांग्लादेश गवर्नमेंट से बात कीजिए ना। पर कांग्रेस पार्टी को जो आंदोलन बंगाली मुस्लिम के लिए किया था, कांग्रेस पार्टी हैज नॉट डन दादा। आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड। जिस वोट बैंक से कांग्रेस पार्टी बार बार आसाम में जीतता है। এইখিনিতে লৈছো ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি। চাই থাকক মেজমেল। পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ। আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱ। সুস্মিতা, মই এটা প্ৰশ্ন কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিটো প্ৰশ্নই মোক ইতিমধ্যেই অপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল আৰু অপ্ৰিয় হ'বলৈ গৈ আছোঁ। বৰাক ভেলীত বহুত মানুহে মোক এই প্ৰশ্নটো কৰাৰ কাৰণে আৰু স্থিতি লোৱাৰ কাৰণে বেয়া পায়। সুস্মিতা, বৰাক ভেলীত কোনো মানুহে বাংলা ভাষা, কোনো মানুহে অসমীয়া নকয়, ক'তো এখন অসমীয়া চাইনবোৰ্ড নাই, ক'তো এখন অসমীয়া স্কুল নাই। মই নকওঁ যে অসমীয়াৰ লগত কিবা শত্ৰুতা আছে, কিন্তু অসমীয়া তাত চৰ্চা নহয়, আৰু নোহোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কাৰণ সেইটো প্ৰিডমিনেণ্টলি এখন বাংলা স্পিকিং এৰিয়া। সেইটো তাত কোনো আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। আজি ইমান দিন ধৰি আমি শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আছোঁ। মই ভাবোঁ যে বৰাক উপত্যকাখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি এখন সুকীয়া ৰাজ্য কৰিব লাগে। হয়, ইয়াক ত্ৰিপুৰাৰ লগত চামিল কৰি এখন সুকীয়া ৰাজ্য কৰিব লাগে, নতুবা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত যিটো ভয় আছে অসমীয়া মানুহৰ যে আমি সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ম, এই সংখ্যালঘুত পৰিণত হোৱাৰ আশংকাৰ পৰা আমি মুক্ত থাকিব পাৰোঁ। সুস্মিতা দেৱ, আপোনাৰ স্থিতি। सी दादा, अगर आप देश का इतिहास देखेंगे, जितना भी स्टेट हुआ
वो भाषा के भित्ति पे हुआ। जी, करेक्ट, दिस इज द रियलिटी इवन इन सरदार पटेल स्टाइल। यस यस, करेक्ट, भाषा एंड इफ यू राइट संस्कृति, कल्चर जिसको हम बोलते और एथनिसिटी। हैं, एथनिसिटी। करेक्ट। अब आसाम एक ऐसा स्टेट है जिससे सबसे ज्यादा स्टेट कार्व आउट हुआ। एम आई राइट? हाँ, आज ठीक है छत्तीसगढ़ हुआ, आज झारखंड हुआ, पर आसाम से जितना स्टेट हुआ आप देख लीजिए, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये सब आसाम से निकल के गया ऑन एथनिसिटी एंड लैंग्वेज। करेक्ट। सो आसाम की हिस्ट्री में तो नया स्टेट बनना है, बट द क्वेश्चन इज, आप असमीज लोगों को लगता है, असमीज स्पीकिंग लोगों को लगता है कि अगर बराक वैली बाहर जाएगा तो असमीज स्पीकिंग लोग जिनका जो अपने आप को माइनॉरिटी फील करते हैं उससे वो बच जाएंगे। अब मेरा ये कहना है, आई से आपने कहा कि बराक वैली में बंगाली स्पीकिंग लोग प्रीडोमिनेंट हैं। अगर हम आसाम से निकल जाएंगे तो बराक वैली के बाहर फ्रॉम लोअर आसाम राइट टू डिब्रूगढ़, लखीमपुर, ओके, तिनसुकिया, हमारे बंगाली स्पीकिंग लोग और माइनॉरिटी हो जाएंगे। Today, because Barak Valley is a part of Assam, because Barak Valley বরাক আজকে আসামে আছে বলে সেজন্য বাঙালির আওয়াজ আছে, বাঙালির আওয়াজ আছে। যদি বরাক বের হয়ে যায়, ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি বাঙালির আওয়াজটা নিচে যাবে, হয়ে যাবে। সেটা আমি বুঝছি, না না, কেউ যদি সংখ্যা গুরু হতে চায়, কেউ তো সংখ্যা লঘু হতেই লাগবে। তবে আপনার কথা থেকে আমি স্পষ্ট, আপনার কথার পৰা এইটো মই স্পষ্ট হৈছো যে মোৰ অংকটো একেবাৰে ভুল হোৱা নাই। সুস্মিতা দেৱ, ইয়াত আমি সংখ্যা গুৰু হৈ থাকিব লাগিলে এই কামটো আমি কৰিব লাগিব। সুস্মিতা, মই এই কথাটোত আহিব খুজিছো, বিৰোধী ঐক্য এতিয়া বিজেপি আৰু ইয়াৰ যিবিলাক মিত্ৰ দল, তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচন, সকলো ধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু। এতিয়া যদি বিধানসভা আহে বিধানসভাৰ বাবেও সাজু, আৰু লোকসভা আহে লোকসভাৰ বাবেও সাজু। এতিয়া মোক কওকচোন, আপুনি এক নম্বৰ, আপুনি BTC ইলেকশ্যনত আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি? তাততো বহুত সংখ্যক বাংলাভাষী লোক আছে। हम BTC में लड़ेंगे। কিমান সিটত যাব? Right now we are at 23. 23? Yeah, 23 seats, but we will see. Today is our final meeting. आज 4 बजे हम डिसाइड करेंगे। देखिए, हम आसाम में नया पार्टी तो नहीं है, बिकॉज दीपेन पाठक जी थे, एज यू नो, ही वॉज एन MLA, पर नया तरीका से हम शुरू किया है। और BTAD में जो ट्राइबल लोग हैं, उनको बीजेपी को वोट नहीं देना। आफ्टर मणिपुर के बाद ट्राइबल लोग आर अगेंस्ट बीजेपी, क्योंकि मणिपुर में आग बीजेपी ने लगाया है। प्लस देर इज बंगाली हिंदू एंड बंगाली मुस्लिम। मैं तो बंगाली हिंदू को ये समझाऊंगी BTAD में कि का बोल के जो वोट लिया है वो तो 6 शेड्यूल में लागू ही नहीं होता। तो बंगाली को उल्लू बनाया उन्होंने BTAD में, अमित शाह जी ने और हेमंत जी ने मिलकर। तो ये इश्यूज बोलने वाला कोई और पार्टी नहीं है, तृणमूल है। सो वी मस्ट फाइट BTAD and you are talking about opposition unity in Assam. See दादा, बीजेपी को हराने के लिए अगर हमें कुछ करना है, ममता दीदी इज ऑलवेज रेडी फॉर इट, बट इट इज हर डिसीजन। ना आपका इट्स अ प्रेस्टिजियस फोरम में फिर बोलती हूँ, ऑनरेबल राज्यसभा MP अजीत भुइया, वो कभी इस होटल में मीटिंग करते हैं, कभी उस होटल में मीटिंग करते हैं ना। उसमें अखिल गोगोई भी जाते हैं, लुरिन ज्योति भी जाते हैं। मैं 2 फैक्ट्स देती हूँ। लुरिन ज्योति जी, आई रिस्पेक्ट हिम, उनको कितना सीट मिला पंचायत में? कुछ ही नहीं मिला। बट तृणमूल को 5 AP सीट हम जीत के आए। वी फॉट ओनली 44, बट वी वन। टुडे TMC का पोजीशन लुरिन ज्योति जी से बेटर है पंचायत में, और ओखिल से, और ओखिल हमसे आगे है। देयर इज नो डिनाइंग दैट। नाउ द क्वेश्चन इज, ऑपोजिशन यूनिटी अगर कोई कर सकता है, कांग्रेस शुड लीड। ओके, इफ कांग्रेस अगर मना कर देता है तो माइनस कांग्रेस एक फ्रंट होना चाहिए। दिस इज माय व्यू। अब इसका फाइनल डिसीजन इज विद माय लीडर ममता दी। आई कैन नॉट डिसाइड। अनदर क्रिटिकल पॉइंट जो है बंगाल
और असम का इलेक्शन एक साथ में एक होता साथ में हो रहा है। अब बंगाल में क्या होगा मुझे नहीं पता बिटवीन कांग्रेस एंड तृणमूल TMC, सो हमको वेट करना पड़ेगा पर दादा आई विल टेल यू दैट अजीत भुइया जो भी मीटिंग किया या भूपेन बोरा के बाद जो भी मीटिंग हुआ तृणमूल के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो যদি তৃণমূল কোনো অ্যালায়েন্সে যায় না এটা তৃণমূলকে জন্য কেউ দোষ দিবেন না they have never তেওঁলোকে approached তৃণমূলৰ লগত us যোগাযোগত থকা there is no contact with us there is no information to us रिपुन बोरा जी जाते थे भूपेन बोरा के पास राइट या लेफ्ट में बैठते थे because रिपुन बोरा जी was 1 foot in Congress then हाँ but as such तृणमूल nobody is authorized किसी के पास authorization नहीं है ये अलायंस मीटिंग में बैठने का विदाउट परमिशन ऑफ ममता दी बट अगर कोई डिस्कशन करना चाहता है तृणमूल कांग्रेस इज ओपन टू इट সুস্মিতা অলপতে কেবিনেট পৰহি কেবিনেট মিটিং হৈছিল আৰু কেবিনেট সভাত এই কথাটো অনুমোদন হৈছে যে আন্তঃধৰ্মীয় মাটি কেনা বিচা ইণ্টাৰফেইথ ল্যান্ড সেল পাসেস এইটোত যদি কৰিবলৈ হয় কেতবোৰ নতুন বাধা নিষেধ আহি গৈছে উচ্চস্তৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা তেওঁলোকে পাৰমিশন ল'ব লাগিব এইটো আপুনি কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে सी दादा पहली बात तो ये है राइट टू लैंड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी you can you know say that land to right doesn't apply but Dr. Hemanta Biswa Sharma is a master of communal politics and divide and rule ये एक और स्ट्रैटेजी है डिवाइड एंड रूल करने का और मैं आपको ये बता देती हूँ ये लॉ से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू लोगों का होगा क्यों किसी के घर में शादी है जमीन बेचना है हाँ वो किसी मुसलमान को नहीं बेच सकता करेक्ट ही विल फेस प्रॉब्लम्स टुडे अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का मानो यदि हिंदू कम्युनिटी का जमीन खरीदना चाहता है व्हाट इज रॉन्ग विद इट व्हाट इज रॉन्ग सी हेमंत बिश्व शर्मा जी इज डिमोनाइजिंग द मुस्लिम लोगों को विलेन बना रहा है आप बताइए जो चीफ मिनिस्टर इस स्टेट का होम मिनिस्टर है जिसके अंडर पुलिस है वो कह रहा है कि बंदूक का लाइसेंस लो একটা রাজ্যের গৃহমন্ত্রী বলছে बंदूक का लाइसेंस लो दादा पहली बात तो आसाम के लोगों को पता ही नहीं कौन किलोंजिया है कौन किलोंजिया नहीं ये तो हेमंत तो सपने में देखता है कौन किलोंजिया है सुबह उठ के बोल देता है तुम किलोंजिया हो तुम नहीं हो तुम किलोंजिया हो तुम नहीं हो एक स्टेट का गृह मंत्री आपको बंदूक का लाइसेंस लेने को बोल रहा है तो वो क्या प्रोटेक्शन देगा ये जो इंटरफेथ बोल रहा है ना लैंड का दिस इज अगेन ही इज सेइंग दैट हिज पुलिस इज फेलियर दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज फेलियर दैट वो ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगर कोई जबरदखल करছে आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे दिस इज योर फेलियर चीफ मिनिस्टर कि आपको ये अजीब अजीब कानून बनाना पड़ रहा है दिस इज ऑल अ गिमिक दादा This is all a gimmick. I'm telling you, vote bank politics. This is for vote bank politics. I challenge Chief Minister of Assam. Written में, cabinet decision में, define indigenous, define Kilonjia. United Nations में जाके India has not been able to define indigenous. They said all Indians are indigenous. तो आप क्या indigenous कर रहे हैं? हिंदू बंगाली तो 1874 है. आप में है डिक्लेयर करिए आपने कहा सत्येंद्र मोहन देव संतोष मोहन देव सुष्मिता देव प्रीतिका देव हम किलोंजिया है कि नहीं बताइए दादा आप बताइए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ प्लीज डिफाइन किलोंजिया डेफिनेशन मुझे समझा दीजिए मुझे तो समझ में नहीं आया कौन है आसाम का किलोंजिया एक विश्लेषण दीजिए ना कोई नहीं जानता चीफ मिनिस्टर नींद से उठ के बोलता है ये किलोंजिया ये इट इज टोटल politics of gimmicks to divide the people of Assam. Susmita, coming to SIR, Rahul Gandhi দেখুৱাই দিছে
যে ভোটাৰ লিষ্টত বহুত খেলি মেলি আছে এনমেলিজ আৰ দেয়াৰ কোনোবাটো ঘৰত 40টা মানুহ একেলগে আছে এটাই এড্ৰেছ আৰু ভোট 40টাৰ কোনোবাটোৰ এখন ফটো 20খন ভোটাৰ কাৰ্ড একেখনেই ফটো এনেকুৱা এটা কৰ্ণাটকৰ এটা সৰু কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাত দেখুৱাই দিলে যে 1,250টা ফেক ভোট আছে এতিয়া স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন ভোটাৰ তালিকাৰ বিস্তৃত সংশোধনীৰ জৰিয়তে এই খেলিমেলিবোৰ দূৰ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে They want to rectify those anomalies. আৰু আপোনালোকে আপোনাৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে SIR একেবাৰে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ঘটনাটো কি एंटा पूरा ऑपोजिशन इसका विरोध क्यों कर रहा है सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2 चीज कर रहा है दादा वन जो जेन्युइन वोटर है उसको डिलीट कर रहा है क्योंकि किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन सर्टिफिकेट नहीं है किसके पास है माइग्रेंट वर्कर के पास है तो जेन्युइन वोटर को वन साइड से निकाल रहा है और फॉल्स वोटर को एक तरफ से फॉल्स एपिक कार्ड नंबर डुप्लीकेट एपिक कार्ड नंबर देके उनको वोटर लिस्ट में डाल रहा है दिस इज अ डबल गेम ECI इज प्लेइंग सो अगर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है आप इलेक्शन से 6 महीने पहले क्यों कर रहे हैं सच अ बिग एक्सरसाइज आई कैन शो यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब पास्ट में SIR किया था जो स्टेट विद इन 12 मंथ्स इलेक्शन में जा रहा वहां SIR नहीं हो सकता ये क्यों कर रहे हैं टू हेल्प द बीजेपी सो आई एम टेलिंग यू ECI 2 चीज कर रहा है जेन्युइन वोटर को निकाल रहा है और फॉल्स वोटर को डाल रहा है टू डू व्हाट टू हेल्प द बीजेपी इसका क्या प्रूफ है मैं आपको बता देती हूं आप राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहे हैं ECI तो अनुराग ठाकुर जो इतना एलिगेशन लाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आप अनुराग ठाकुर बीजेपी MP से क्यों नहीं एफिडेविट मांग रहे बिकॉज ECI इज द पपेट ऑफ बीजेपी और मैं आसाम के जनता से अपील करती हूं कि प्लीज बी केयरफुल ये अमित शाह और हेमंत बिश्व शर्मा सोनोवाल जी सब मिलके 6 साल में NRC नहीं कर पाए वो SIR 6 महीने में करेंगे कैसा होगा SIR दादा हमने 6 साल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में कागज दिखा के NRC नहीं हुआ that government is telling us to do SIR what will happen this is match fixing and I am putting it on record to my Muslim brothers and sisters who are citizens not illegal be very careful you are target मुसलमान को टारगेट किया जाएगा आप देख लेना दादा this is the only way that Hemant Biswa Sharma and BJP can manipulate the election of Assam अगर हेमंत बिश्व शर्मा जी आप में ताकत है आपके पुलिस में और आपके होम मिनिस्टर अमित शाह में आप बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को निकाल के बताइए आप नहीं निकाल पा रहे दैट्स व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस नाटक बहुत धन्यवाद सुस्मिता देव আপুনি আমাক বহুত সময় দিলে আৰু মই আপোনাৰ পৰা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি বিচাৰিম প্ৰতিশ্ৰুতিটো হ'ল যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপুনি মোক আৰু অলপ সময় দিব লাগিব डेफिनेटली 100% श्योर থ্যাংক ইউ বহুত ধন্যবাদ মেজমেল ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ